آپ نے دیکھا کہ الگ الگ انداز میں، اور شاعروں کی خوبی یہ کہ ایک ہی بات کو وہ کئی طریقے سے اور الگ الگ انداز سے، ایک شاعر ایک بات کہے گا، دوسرا اس سے الٹی کہے گا، اور اس طریقے سے کہے گا کہ آپ کنونس ہو جائیں گے. تو چلیے پھر شروع کرتے ہیں. جی میرے کو شعر و شاعری نہیں آتی ہے جی، تو ابھی آپ نے جو 2 ایگزامپل دیے تو آپ کون سا چاہیں گے کہ مطلب کہ ایک جو ہے نیا ہے وہ فالو کرے؟ یہ جو قصہ سنا ہے تلسی داس کو فالو کرے یا یہی تو مزہ ہے. سنیے، یہی مزہ ہے کہ آپ نے خود چننا ہے. زندگی کی فلسفی یہی ہے. بہت کچھ ابھی میں اتنا کچھ آپ کے آگے رکھوں گی، اب اس میں سے کیا آپ کو پسند آتا ہے یا یہاں پہ آپ کو آپشن اور چوائس ساری ہے. نہیں، میں تو یہاں پہ یہ سوچ کے آیا تھا کہ میں مطلب شعر و شاعری میں شعر ہم ہیں اور شاعری ہمارے ساتھ آئی. اب ابھی آپ نے ذکر کرا کہ ویڈیو دیکھ کے اب اسی لیے میں نہیں، اور اسی وجہ سے میں اور اشوک اکیلے اکیلے آئے. آپ ہمیشہ وستار سے بتاتے تھے، آج بڑے آج تو وستار سنکشیپ، کیونکہ بہت کچھ کہنا ہے مجھے وستار میں بہت کچھ. بیوی کو تو دیکھو پر اپنی نہیں. یہ بھی ٹھیک ہے. تو چلیے، تو کہاں سے شروع کروں؟ یہ سب تو ایک انٹروڈکشن ہو گئی شعر و شاعری کے بارے میں، شاعروں کے بارے میں. کہاں سے شروع کروں؟ کیا سنائیں تمہیں داستان حیات، لاکھ عنوان ہے اس فسانے کے. شاعری میں پوری کائنات سمٹ آتی ہے. شاعری میں ذات بھی ہے، کائنات بھی ہے، تمہاری بات بھی ہے اور ہماری بات بھی ہے. تو دوستو، یہ جو پوری کائنات ہے یہ انسان کے دم سے ہے، اور انسان اب ہونا اپنے آپ میں بہت بڑی بات ہے. میر نے کہا تھا، مت سرل ہم کو جانو، پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتا ہے. اور صرف یہ جسم مل جانے سے آدمی انسان نہیں بن جاتا. غالب نے کہا، آدمی کو میسر نہیں انسان ہونا. اور غالب نے کہا، ہم نے مانا فرشتے ہو شیخ جی. شیخ جو ہوتے ہیں، شیخ پارسا، زاہد، یہ سب وہ گرو جو اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم جنت پہنچا دیں گے، جنت میں تمہیں. تو انہوں نے کہا، ہم نے مانا فرشتے ہو شیخ جی، آدمی ہونا بہت دشوار ہے. اور ایک شاعر نے تو انسان کو خدا کا درجہ ہی دے دیا. کہتے ہیں، انسان کی بدبختی انداز سے باہر ہے، کمبخت خدا ہو کے بھی بندہ نظر آتا ہے. ایک 17 سینچری کے پوئٹ ہوئے نذیر اکبر آبادی، بہت اچھی نظمیں لکھا کرتے تھے وہ، اور ان کی ایک نظم مجھے بہت پسند ہے، آدمی نامہ، جس میں وہ کہتے ہیں کہ تخت نشی ہونے والا بھی آدمی ہے، راہ کی دھول جھونکنے والا بھی آدمی ہے، مسجد میں جا کے نماز پڑھنے والا بھی آدمی ہے، اور مسجد سے جوتیاں چرانے والا بھی آدمی ہے. اور آگے کہتے ہیں، پگڑی بھی آدمی کی اتارے ہے آدمی، چلا کے آدمی کو پکارے ہے آدمی، اور سن کے جو دوڑا چلا آئے ہے وہ بھی آدمی. لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم انسان کے بہت روپ ہوتے ہیں، ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہمیں ٹھپا لگا دیتے ہیں بہت جلدی، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے. تو اس کے لیے ندا فاضلی صاحب نے کہا، ہر آدمی میں ہوتے ہیں 10-20 آدمی، جس کو بھی دیکھنا کئی بار دیکھنا. اور واقعی ہر آدمی میں بہت رنگ ہوتے ہیں، اور یہ اتنے مختلف رنگوں کو جو ہوتے ہیں یہی اس کی شخصیت کو مزیدار بنا دیتے ہیں. اب دیکھیے طرح طرح کے رنگ. میں سادھوؤں سے کبھی کبھی آلاپ بھی کر لیتا ہوں، مندر جا کے پوجا پاٹ بھی کر لیتا ہوں، یہ سوچ کے کہ آدمی سے خدا نہ ہو جاؤں، میں کبھی کبھی پاپ بھی کر لیتا ہوں. اور کبھی کبھی تو شاعر یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ انسان بنا کر خدا نے اس پر رحم کیا ہے یا اس پر ستم کیا ہے، وہ خود کو بھی نہیں پہچان پاتا. خاص طور سے آج کل کے دور میں کہتا ہے کہ بچھڑ کے خود سے گم ہو گیا ہوں جانے کہاں، میرا وجود برابر میری تلاش میں ہے. اور زندگی بھر اپنے وجود کو وہ تلاشتا ہی رہتا ہے. اسی تلاش جستجو میں کھو گیا ہوں میں، اگر نہیں ہوں تو کیوں کر، اور اگر ہوں تو کیوں ہوں میں. یہ تلاش زندگی بھر چلتی رہتی ہے. اور عالم یہ ہوتا ہے کہ انسان نہ تو خود کو سمجھ پاتا ہے اور نہ زندگی.
क्यों? क्योंकि जिंदगी एक मुअम्मा है समझने का न समझाने, मुअम्मा मीन्स पहेली। जिंदगी एक मुअम्मा है समझने का न समझाने का, जिंदगी काहे को है ख्वाब एक दीवाने का। कोई जिंदगी को भार की तरह ढोता है तो कोई सिर्फ सांसों का कर्ज ही चुकाता है और कहता है जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं, और जुर्म क्या है ये पता ही नहीं। इसकी भी एक वजह है। कुछ इस कदर जहां में मसाइल का हुजूम था, मसले मसाइल प्रॉब्लम्स का हुजूम था, कुछ इस कदर जहां में मसाइल का हुजूम था, मैं जिंदगी से मिल न सका जिंदगी में भी। तो कोई पूरी जिंदगी जीने के बाद उसको समझता नहीं और कहता है ये और बात है कि तारुफ न हो सका, मैं जिंदगी के साथ बहुत दूर तक गया। ये जो जिंदगी है इसने अपनी हस्ती में बहुत सारी सरहदों को समेट रखा है। किसी के लिए इश्क मोहब्बत है, किसी के लिए हसीन धोखा है, किसी के लिए दूरियां हैं, मजबूरियां हैं, तन्हाइयां हैं। हर किसी के लिए अलग अलग है और हर किसी को जिंदगी से कोई ना कोई शिकायत भी रहती है, क्योंकि इसको जीने का कोई सेट फॉर्मूला तो है नहीं। इसलिए इसके बारे में मुख्तलिफ अंदाजे बयां हुए और जैसे मैंने कहा आप अपनी मर्जी से समझिए जो आप समझना चाहते हैं। जिंदगी के बारे में कहते हैं रंजो राहत वस्लो फुरकत होशो वहशत क्या नहीं, कौन कहता है कि रहने की जगह दुनिया नहीं। फिर भी साहब अजल से अबद तक जिंदगी का सिलसिला तो चलता ही रहता है और इसे दिन रात के चक्कर से हमें नहीं मापना चाहिए। कहते कि पुश्तर है गर्दिशे पैहम से जामे जिंदगी, है कभी जां कभी तस्लीम जां है जिंदगी, तू इसे पैमाना है इमरोज व फरदा से न नाप, जा विदा पैहम दवा हरदम रवा है। कहने का इसका मतलब मुख्तसर ये है कि जिंदगी गर्दिश का चक्कर दिन रात का ये चलता रहेगा। हम आए हैं, हम अपना चले भी जाएंगे और इसको दिन रोज सुबह शाम के चक्कर से मत नापिए। जिंदगी का सिलसिला तो सदियों से चला आ रहा है और ताज्जुब ये होता है कि इतनी पुरानी होकर भी हरदम नई सी लगती है। हर रास्ता अनजान सा, हर फलसफा नादान सा, सदियों पुरानी है मगर फिर भी नई है जिंदगी। जो पाए वो खोए से, जो खोए वो पाए से, यूं तो सभी के पास है, किसकी हुई है जिंदगी। ये जो जिंदगी है ये पल पल रूप बदलती रहती है। और कहती है हर रस्म और रवायत को कुचल सकती हूँ, हर रस्म और रवायत को कुचल सकती हूँ, जिस रंग में ढालो ढल सकती हूँ, उकताने नहीं दूंगी अपने से कभी, उन आपके लिए कई रूप बदल सकती हूँ। तो जिंदगी तो पल पल रूप बदलती है और क्योंकि पल पल रूप बदलती है इसलिए शायरों को उस पर एतबार ही नहीं होता। अकबर इलाहाबादी ने अपने अंदाज में कहा बरसों का छोड़ती है पल भर में साथ जालिम, कहते हैं उम्र जिसको माशूक बेवफा है। और फिर बोले दुनिया तो मिल रही थी लेकिन मैंने ली नहीं, मैं जानता था इसकी किसी से निभी नहीं। तो किसी का एक जिंदगी से दिल नहीं भरता और वो एक और जिंदगी मांगता है और कहता है कि उम्र गुस्ताखियों के लिए भी नसीब हो, ये जिंदगी तो आदाब व अदब में गुजर गई। क्या बात। तो किसी के लिए जिंदगी एक खेल तमाशा है, जैसे गालिब ने कहा बाजीचे अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शबो रोज तमाशा मेरे आगे। बच्चों का खेल है दुनिया, वो इसको तमाशे की तरह से देखते रहते। तो जिंदगी से तो कभी कोई मुतमईन हुआ नहीं। कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी जमीन तो कभी आसमान नहीं मिलता। खैर जब दुनिया मिल भी जाती है तब हम कौन सी उसकी कदर करते हैं। क्यों? क्योंकि दुनिया जिसे कहते हैं वो जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है और खो जाए तो सोना है। कभी कभी सब कुछ जानते हुए भी हम लापरवाह हो जाते हैं।
अपनी वजह बर्बादी सुनिए तो मजे की है, जिंदगी को यूं जिए जैसे दूसरे की है। तो साहब आज की जो जिंदगी है उसकी दुश्वारियां और ज्यादा बढ़ गई हैं, और जैसे जैसे हम मॉडर्न होते जाते हैं तो हमें हमारी परेशानियां बढ़ रही हैं, ऐसा हम सोचते हैं। बहुत खूबसूरत शेर है, सुनिए ध्यान से। निकल के शहर से आए तो गांव से भी गए, मकान की तलाश में पेड़ों की छांव से भी गए। अजीब शहर है, चेहरों का जाल ऐसा है, किसी ने ये भी न पूछा कि हाल कैसा है। और ऐसे में एक शायर ने मशवरा दिया, ये नए मिजाज का शहर है, यहाँ फासले से मिला करो, कोई हाथ भी न मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से। और दूसरे ने इसका उल्टा मशवरा दिया, उसने कहा बात कम कीजिए, जहानत को छुपाते रहिए, ये बड़ा शहर है, कुछ दोस्त बनाते रहिए, दुश्मनी लाख सही, खत्म न कीजिए रिश्ता, दिल मिले या न मिले हाथ मिलाते रहिए। तो कोई दुनिया के झंझटों में फंसना ही नहीं चाहता। कुछ समझ आ रहा है या मुझे मैं ऐसे ही बोले जा रही हूँ? देखिए शायरी में तो आ और वाह निकलना चाहिए, तो कोई मजा नहीं। तो आपने वहाँ का मौका दिया, आहा का नहीं दिया। ये बीच में आ बीच ये तो में वो तो है ही, वो तो इंक्लूडेड है। तो कोई ऐसे भी होते हैं जो दुनिया के झंझटों में फंसना ही नहीं चाहते। दुनिया में हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं हूँ, बाजार से गुजरा हूँ, खरीदार नहीं। क्या बात। अकबर इलाहाबाद। आज की दुनिया जो है वो वाकई बाजार हो गई है, और इसीलिए फिर किसी ने मशवरा दिया, पूरी तरह से अब के हम तैयार होके निकले, हम चारागर से मिलने बीमार होके निकले, जादू भरी जगह है ये, बाजार तुम न जाना, एक बार हम गए थे बाजार होके निकले। तो अकबर इलाहाबादी किसी झंझट में फंसना नहीं चाहते, और कहते हैं, मैंने जैसे कहा कि शायरों का अपना मिजाज होता है, तो नप मिजाज, तो कहते हैं हम कब शरीक होते हैं दुनियावी जंग में, वो अपने रंग में, हम अपनी तरंग में। और जो दौर बदल रहा है उसके साथ इंसान भी बदल रहा है। पहले जहाँ चाह हंस लेते थे, जहाँ चाह रो लेते थे, अब सलीका हंसी को तमीज चाहिए और रोने को तन्हाई चाहिए। क्या बात है। परेशानी की बात यह है कि आज का जो इंसान है वो हर चीज को जब्त करके रखता है, हम बांटते नहीं हैं अपना दुख दर्द किसी के साथ। कहते हैं रोक ले जब्त जो आंसू चश्मे तर में है, रोक ले जब्त जो आंसू चश्मे तर में है, कुछ नहीं बिगड़ा अभी घर की बात घर में है। लेकिन साहब मैं तो ये कहती हूँ, कभी तो गले मिल के रो लिया होता, ये तलखियों का कड़ा सिलसिला नहीं होता। क्या बात है, क्या बात है। और मीर ने कहा कि रोना है तो फूट फूट के रो, मुत्तसिल रोते रहिए तो बुझे आतिशे दिल, एक दो आंसू से तो आग और भड़क जाती है। तो इंसान जो है वो जिंदगी और मौत के बीच में झूलता रहता है, और कभी कभी इन परेशानियों से इतना तंग आ जाता है तो दाग देलवी कहते हैं कि जीत से तंग हो तो जीते क्यों हो, जान प्यारी भी नहीं, जान से जाते भी नहीं। तो ज़ौक़ ने कहा अब तो घबरा के ये कहते हो कि मर जाएंगे, और मर के भी चैन ना पाया तो कहाँ जाएंगे। ज़ौक़ जो थे ये बहादुर शाह जफर के उस्ताद थे, और गालिब इनके कंटेम्पररी थे, और इन दोनों की आपस में बिल्कुल बनती नहीं थी। लेकिन इस शेर को सुन के गालिब ने कहा था कि ये एक शेर अगर मेरे खाते में आ जाए तो मैं इसके लिए अपना पूरा दीवान दे सकता हूँ। तो शायरों का ये भी मिजाज होता है, कब वो क्या लुटा दें ये वही जानते हैं। तो साहब जिंदगी और मौत का तो ऐसा है कि लाई हयात आए ग़ज़ालें चली चले, अपनी खुशी ना आए ना अपनी खुशी चले। और ज़ौक़ साहब ने मशवरा दिया है कि दुनिया ने किसका राह फना में दिया है साथ, दुनिया ने किसका राह फना में दिया है साथ, तुम भी चले चलो जब तक चली चले। तो जिंदगी को समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी है, और हम सोचते हैं कि हमने बहुत पढ़ लिया, हम बहुत समझदार हो गए और हमें जिंदगी की समझ आ गई, लेकिन ऐसा नहीं है। ज़ौक़ ने कहा जिंदगी कुछ और शे है
इल्म है कुछ और शे। वाह वाह जो हम पढ़ते हैं ना वो जिंदगी की पढ़ाई नहीं होती। तो जब जिंदगी को आंखों में आंखें डाल के उसको फेस करते हैं तब जानते हैं जिंदगी क्या है। तो निदा फाजली ने कहा, धूप में निकलो घटाओं में नहाकर देखो, जिंदगी क्या है किताबों को हटाकर देखो। खैर समझ में आए या ना आए, जिंदगी का साथ तो निभाना पड़ता है और झूठी सच्ची तसल्लियों से दिल को बहलाना पड़ता है। फुगा कि मुझ गरीब को हयात का ये हुक्म है, वाह समझ हर एक बात को मगर फरेब खाए जा। क्या क्या करे, मजबूरी होती है। हर एक शिकस्ते तमन्ना पे मुस्कुराते हैं, वो क्या करें जो मुसलसल फरेब खाते हैं। वाह क्या बात है। और फिर आदत हो जाती है फरेब खाने की। वही मिजाज है, वही चाल है जमाने की, हमें भी हो गई आदत फरेब खाने की। तो गालिब कहते हैं, तेरे वादे पे जिए हम तो ये जान झूठ जाना कि खुशी से मर न जाते अगर एतबार होता। तो एक ही बात को देखिए अलग अलग शायर किस तरह से पेश करते हैं। तो साहब जब दुनिया का मिजाज नहीं बदला तो शायरों ने उसका भी रंग एक हल ढूंढ लिया और वो कहते हैं कि दीवाने हो जाओ। अल्लाह बकदरे होश हर किसी को रंज मिलता है यहाँ, खुशी से रहते हैं सुकून से रहते हैं सिर्फ दीवाने। दीवाने हैं। तो अली सरदार जाफरी ने कहा, ये दामन और गरेबा अब सलामत रह नहीं सकता, वाह अभी तक कुछ नहीं बिगड़ा है, दीवानों में आ जाओ। क्या बात है। और निदा फाजली की बात पे जरा गौर कीजिए, ध्यान दीजिएगा इस शेर पे। शाइस्ता महफिलों की फजाओं में जहर था। वाह शाइस्ता पढ़े लिखे लोग, दानिश्वर, जो बार आजकल हम लोग मीटिंग्स करते रहते हैं और कुछ हल नहीं निकलता। शाइस्ता महफिलों की फजाओं में जहर था, जिंदा बचे हैं जहन की आवारगी से हम। क्या बात है। वाह बहुत एक शायर ने कहा कि अगर आप दीवाने नहीं भी होंगे ना तो कोई ना कोई आपको दीवाना बना बना देगा। देगा, दीवाना बनाना है तो दीवाना कोई नासे, कोई दोस्त, कोई गमखार, सब ने मिलके मुझे दीवाना बना रखा है। और एक बहुत खूबसूरत शेर है जो भी मैंने थोड़े दिन पहले कहीं सुना, निगाहे कम से मेरी चाक दामनी को न देख, मेरे फटे हुए लिबास को मुझे नीचा मत समझ कि हिकारत की नजर से मत देख। निगाहे कम से मेरी चाक दामनी को मत देख, हजारों होशियारों में कोई दीवाना बनता है। क्या बात है। वाह वैसे भी जीने के लिए कोई दीवानगी, कोई जुनून बहुत जरूरी होता है। जानिसार अख्तर का कलाम है, मिजाज रहबरो राही बदल गया है मियाँ, जमाना कयामत की चाल चल गया है मियाँ, कोई जुनून न रहा तो फिर जिंदगी क्या है, वो मर गया है जो जरा भी संभल गया है मियाँ। क्या वाह लेकिन ये जो अक्ल है ना, ये दीवाना होने नहीं देती, ये हकीकत पे लगाम लगा के रखती है। और अक्ल जो है वो हमें हर कदम पे फूक फूक के कदम रखने की सलाह देती है। पर जो ख्वाब है उनके पीछे तमन्नाओं के तरन्नुम बजते रहते हैं और वो सर पर दौड़ते रहते हैं। तो ख्वाबों की अपनी जगह है हर जिंदगी में। दीवानगी से जीने के लिए शायर ख्वाब सजाते हैं, कहते हैं कि एक भी ख्वाब नहीं जिन आंखों में वो आंखें क्या है, एक नई ख्वाब तो आंखों में सजाओ यारों, जिंदगी यूं तो न बाहों में चली आएगी, गमे दौरा के जरा नाज उठाओ यार। वाह क्या बात। वाह और ख्वाब और हकीकत जब आमने सामने आके खड़े हो जाते हैं तो कई बार यूं भी होता है कि ख्वाब और हकीकत में जब भी जंग होती है ख्वाब और हकीकत। ख्वाब हार जाते हैं, और यूं भी होता है तलखी हयात में ख्वाब याद आते हैं। हयात जिंदगी की जो तलखियां हैं क्या बात। तो पल पल बदलती जो जिंदगी है उससे शायर मायूस नहीं होता। वो कहते हैं कि फुर्सते कार फकत 4 घड़ी है यारों, बहुत अच्छा मशवरा दिया है। फुर्सते कार फकत 4 घड़ी है यारों, ये ना सोचो कि अभी उम्र पड़ी है यारों, वाह अपने तारीख मकानों से बाहर तो निकलो, जिंदगी शम्मा लिए दर पे खड़ी है वाह यारों। क्या बात क्या बात। तारीख मतलब अंधेरे बंद मकानों से। बिल्कुल सही। तो जीना है तो हर हाल में, और उसके लिए सबसे अच्छा जो उपाय होता है मोहब्बत। और हर कोई मोहब्बत करना चाहता है, करता है, मिलती है, देता है।
तो उसके सहारे ज़िंदगी बहुत खूबसूरती से बीत जाती है। और उर्दू शायरी तो इश्क और मोहब्बत की दास्तान कहती है। इश्क तो मुर्दों में भी जान फूंक देता है, ऐसा होता है इश्क का जुनून। मोहब्बत के बगैर तो फिर ज़िंदगी ऐसी होती है जैसे कि रेगिस्तान हो और कभी बारिश ही ना हुई। क्या बात तो है क्या ये मोहब्बत? एक लफ्ज़ मोहब्बत का इतना सा फसाना है, एक आग का सिमटे दरिया तो दिले आशिक फैले पहले तो तो ज़माना ज़माना है। है। तो साहब, अगर दर्द मोहब्बत से न इंसान आशना होता, न कुछ मरने का गम होता, न जीने का मजा होता। अगर हुई न दिल में इश्क की मस्ती, तो फिर क्या दुनियादारी, क्या खुदा परस्ती। वाह वाह इश्क दो तरह के होते हैं। बहुत बार मुझे लोग एक शेर भेजते हैं और कहते हैं इसके मायने बता दीजिए, समझा दीजिए। तो मैं उनको कहती हूँ कि लफ्जों के मायने पे मत जाइए। असल शेर, एक शायर ने कहा कि असल शेर शायर के पेट में होता है, आप उसको नहीं समझ सकते, फिर वो आपके दिल से फिर वो